Hello everyone. Welcome to today's lecture. Today we are going to talk about types of cyber attacks. Cyber attack means any attack that is going to happen on an individual, the data of that individual or any business organization. An attacker can target any of these systems, and that is why it is important to talk about the cyber attacks. Now, before we move to cyber attacks, let us try to understand why cyber security is so much important. Nowadays, you see, we are sharing a lot of data over the internet, and also we are sharing a lot of data in our devices. So, if any attack happens on these devices or our systems, it can be a very big loss to the individual or to a particular business organization. That is why it is important to talk about and to have proper cyber security. So, these are the various reasons why the cyber security is important. Number one is cyber security protects sensitive data. हमारे पास जो भी पर्सनल या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है बिकॉज इफ इट गेट्स हैक्ड, अगर इसको किसी ने हैक कर लिया या हमसे बिना पूछे इसके ऊपर उनका एक्सेस हो गया तो दे कैन misuse our information. So cyber security protects important information like our personal data, our banking details, business secrets, and government records. Second reason it prevents financial loss. अगर हमारे किसी भी बैंक अकाउंट का डेटा जो है लीक हो गया या हमारे बैंक अकाउंट पे साइबर अटैक हो गया तो there is a chance that we will lose the whole amount that we have in our bank accounts. So it is important to have cyber security to prevent the financial loss. There are frauds like ransomware, phishing, which can cause huge financial damage. See, the words which are there on the screen right now, we are going to see all these words one by one in details in the coming lecture, coming part of the lecture. So don't skip it, just watch it till the end. Then the third reason is maintains business reputation. अगर किसी कंपनी का कोई भी डेटा लीक हो गया और यूजर्स को इसके बारे में पता चल गया कि हमारा डेटा लीक हो गया है या हमारे डेटा का मिसयूज हो गया है, देन दैट विल कम to the reputation of that particular business. So good cyber security is important to build the confidence and protect reputation of the particular company. The fourth reason is it ensures the system availability. देखो, अगर किसी भी सिस्टम पे अटैक हो जाता है, साइबर अटैक, तो वो सिस्टम कुछ टाइम के लिए काम करना बंद कर देगी, वो स्टॉप हो जाएगी, अपने यूजर्स को सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगी. तो दिस टाइप ऑफ अटैक इज कॉल्ड एज डिनायल ऑफ सर्विस और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस. तो अगर ऐसे टाइप के अटैक्स हमें रोकने हैं अवेलेबिलिटी पे, देन also we should have a proper cyber security. Fifth one is legal and regulatory compliances. So organization must follow data protection because whatever data the users are sharing with the organization, that should be having the protection of law. So cyber security has to meet legal requirements कि हमारा data कोई भी हमारे permission के बिना misuse उसका मतलब use नहीं कर सकता. अगर वो बिना permission के करता है, so that will be called as misuse and उसके ऊपर हम legal action ले सकते हैं. So to have everything, legal compliances, regulations on the data being used by various organizations, the cyber security is very much important. Okay, so in short, we can say that cyber security protects data, money, reputation, availability, and legal compliances. And that is why, because of all these reasons, the cyber security is very much important. And that is why you see government organizations, bank, private companies, even the smallest of the companies having their cyber security plan because of all these particular reasons. Now, let us come to the main topic, that is मेजर टाइप्स ऑफ अटैक्स कि कौन कौन से अटैक्स है जो हमारे सिस्टम के ऊपर या नेटवर्क के ऊपर या हमारी वेबसाइट के ऊपर हो सकता है. नंबर वन इज malware or malicious code. Second one is phishing and social engineering attacks. Third one is password attacks, then network attacks, then there are insider threats and physical attacks. So these are the six types, major types. There are many types, but these are the six main or major types of cyber attacks.
Now we will see each of these attacks one by one. So first attack is malware attack. See, हम लोगों ने सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर ये वर्ड्स तो सुने ही हैं. तो ये है मालवेयर. मालवेयर का मीनिंग है मैलिशियस सॉफ्टवेयर. मैलिशियस का मतलब है कि कुछ तो हार्मफुल, जो हमें डैमेज पहुंचा सकता है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज मैलिशियस सॉफ्टवेयर, कि जो हमारे लिए हानिकारक है, जो अच्छा नहीं है. कुछ तो अगर वो आ जाएगा तो कुछ ना कुछ तो डैमेज कर ही देगा हमारे सिस्टम में या नेटवर्क पे. तो ऑल दीज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड एज मालवेयर और मैलिशियस सॉफ्टवेयर. तो उनका पर्पस क्या है? दे मे डैमेज अवर सिस्टम, डिस्टर्ब अवर सिस्टम, मतलब जो काम कर रहा है उसमें कुछ ना कुछ वो गड़बड़ी कर देगा. और गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस, मतलब हमारा पूरा सिस्टम वो एक्सेस उस पे ले लेगा. अनऑथराइज्ड एक्सेस डेफिनेटली. So this is called as malware attacks. Malware refers to malicious software. Okay, malicious मतलब something which is harmful or dangerous, not good for the system. Next is, अगर malware के देखे जाए तो ये सारे टाइप्स है malware में भी. जो malicious मतलब harmful कोड है, harmful सॉफ्टवेयर है, उसके ये सारे मेन टाइप्स है. वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स, ransomware एंड स्पाईवेयर और एडवेयर. वायरस हम लोगों ने सबने सुना है, हम देखेंगे अभी डिटेल्स में. वायरस, वर्म्स, ये दोनों जो है, दोनों भी मैलिशियस कोड्स है. और वो फाइल्स में या हमारे मेजरली नेटवर्क के ऊपर ये स्प्रेड हो सकते हैं. तो इसको देखेंगे डिटेल्स में हम नाउ इन द कमिंग स्लाइड. सो फर्स्ट वन इज द वायरस एंड वर्म. तो वायरस क्या है? जैसे कि बायोलॉजिकल वायरस होता है कि हमें इन्फेक्शन हो गया वायरस का तो हम बीमार हो जाते हैं. वैसे ही ये वायरस है जो एक क्लीन फाइल में अटैच होगा, और जैसे ही वो फाइल हम ओपन करेंगे तो वो वायरस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा. और ये स्प्रेड कैसे होता है? ये एक से लेके दूसरे में, तीसरे में ये अपना इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड करते जाते हैं. मतलब हमारे पास अगर एक इन्फेक्टेड फाइल आ गई तो उसके बाद हमारी और ज्यादा फाइल्स इन्फेक्टेड हो सकती है. जैसे कि नॉर्मल इन्फेक्शन, हमारा बायोलॉजिकल इन्फेक्शन जैसे स्प्रेड होता है कि किसी एक को फ्लू हो गया तो वो फ्लू पूरे क्लास में भी फैल सकता है. सो सेम काइंड ऑफ वर्किंग दीज वायरसेस आर यूजिंग. वो अपना इन्फेक्शन जो है वो फाइल टू फाइल स्प्रेड करते जाते हैं. इनका एक मेन है कि इनको एक होस्ट चाहिए होता है स्प्रेड होने के लिए. ये फाइल अपने आप से स्प्रेड नहीं होगी, ये किसी भी दूसरे जो अच्छे फाइल है उसमें वो अटैच हो जाएगी एंड देन उसका जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड हो जाएगा. एंड इसकी वजह से मेनली होता है कि सिस्टम हमारा बहुत स्लो हो जाता है, उसका काम करना बहुत स्लो हो जाता है. तो डेफिनेटली हमें मे बी सिस्टम को फॉर्मेट करने की जरूरत पड़ सकती है बिकॉज इफ वी हैव दिस टाइप ऑफ वायरस का इन्फेक्शन. नेक्स्ट इज द वर्म. वर्म्स अगेन इट इज लाइक बायोलॉजिकल वर्म्स. वो इंडिपेंडेंटली काम करे, इनको जरूरत नहीं कि किसी फाइल के ऊपर वो अटैच हो जाए, किसी फाइल से अटैच हो जाए. वो इंडिपेंडेंटली एक खुद से वो एक अपना फाइल है, जैसे कि EXE फाइल होते हैं या स्क्रीन सेवर SCR टाइप .SCR टाइप ऑफ फाइल्स होते हैं, जो एक ऐसे फाइल्स है जो सेल्फ रेप्लिकेट होते हैं. मतलब एक फाइल है, उसकी कॉपी बन जाएगी, उसकी कॉपी, तो कॉपी करते करते वो इतने ज्यादा बन जाएंगे कि वो पूरा नेटवर्क इन्फेक्ट कर देंगे. तो ये मेन डिफरेंस है वायरस और वर्म में, कि वायरस वर्क बाय अटैचिंग इटसेल्फ टू अ क्लीन फाइल, whereas worm वर्क्स इंडिपेंडेंटली, कि वो एक अपना फाइल है जो रेप्लिकेट होता होता जाएगा और पूरे नेटवर्क में भी फैल जाएगा. सो ये है, और उसके लिए कोई होस्ट की जरूरत नहीं है, वो अपने आप से अपना काम करता जाएगा. काम क्या है? उस नेटवर्क को ऑब्वियसली खराब कर देना या फिर कोई जो इन्फेक्शन है उसको स्प्रेड कर देना. और इसकी वजह से क्या होगा? हमारा जो नेटवर्क का बैंडविड्थ है वो पूरा कंज्यूम कर लेंगे ये वाले वर्म्स, और ऑब्वियसली द नेटवर्क विल slow down or may stop working. So virus and worms both are the types of malicious codes or malwares, which is also a type of cyber attack. अटैकर्स क्या कर सकते हैं? ये एक तो वायरस कहीं पे स्प्रेड कर देंगे या वर्म स्प्रेड कर देंगे जिससे कि हमारी सिस्टम डैमेज हो या हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क डैमेज हो जाए. नेक्स्ट टाइप ऑफ अटैक इज फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग अटैक. फिशिंग का एकदम वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखा जाए तो धोखाधड़ी करना, किसी को धोखे से फंसाना और उसकी इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करना, दैट इज कॉल्ड एज फिशिंग.
तो फिशिंग इन्वॉल्व्स ट्रिकिंग यूजर्स टू रिवील कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। देखो हमें कभी कभी कोई लिंक आता है मैसेज में या मेल में, इस लिंक पे क्लिक करो एंड देन यू विल गेट अ लॉटरी टिकट एंड you have won a lottery, or maybe e-KYC is required. These types of messages we get through SMS or maybe the mails. तो ये लिंक से हमें हमेशा दूर रहना है, बिकॉज दिस कैन बी द टाइप ऑफ फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग अटैक, कि वो लिंक पे क्लिक करने को हमें मजबूर कर देंगे, वो लालच दिखाएंगे यहाँ पे क्लिक करो क्लिक करो, और जैसे ही हम क्लिक करेंगे मे बी कुछ गलत हो सकता है हमारे साथ। सो हमेशा वी हैव टू बी वेरी मच अवेयर व्हेन वी हैव such types of links in our messages or in our mailbox. So these attacks are called as phishing and social engineering attacks. उसके भी कुछ टाइप्स है जो हमें याद रखने हैं। एक तो अभी मैंने बोला ईमेल फिशिंग, सो वी गेट फ्रॉडुलेंट ईमेल्स दैट कंटेन मैलिशियस लिंक्स और अटैचमेंट्स, कि कोई भी लिंक आ जाएगी मेल पे, उस पे क्लिक करो तो कुछ भी गलत हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है हमारे साथ। सेकेंड वन इज एसएमएस फिशिंग, दैट इज स्मिशिंग, कि हमें कोई भी फ्रॉडुलेंट टेक्स्ट मैसेज आएगा जिसमें हम फंस सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड स्मिशिंग। स्मिशिंग इज मेड अप ऑफ एसएमएस फिशिंग। एसएमएस के ऊपर मतलब टेक्स्ट मैसेज पे हमें कोई भी फ्रॉडुलेंट मैसेज आ सकता है। थर्ड वन इज विशिंग। विशिंग तो कॉल करके बोलेंगे कि वी आर टॉकिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बैंक एंड नाउ यू विल रिसीव एन ओटीपी, तो गिव अस द ओटीपी। ऐसे टाइप का कोई भी वो लोग इम्पर्सोनेटिंग कर सकते हैं कि वो ट्रस्टेड एंटिटीज से बात करे, मैं बैंक से बोल रहा हूँ या मैं स्कूल से बोल रहा हूँ, कॉलेज से बोल रहा हूँ, आपकी ये इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। तो फोन अगर किसी भी ऐसे गलत जगह से अननोन नंबर से आता है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन आंसरिंग सच टाइप ऑफ फोन कॉल्स। मे बी वीडियो कॉल्स भी आ सकते हैं जो हमारा पूरा चेहरा रिकॉर्ड करे और उसका कुछ गलत इस्तेमाल करे। सो दैट इज द टाइप ऑफ फिशिंग कॉल्ड एज विशिंग। एंड नेक्स्ट वन इज स्पीयर फिशिंग। स्पीयर मतलब वो किसी रैंडम बंदे को कॉल नहीं करेंगे, दे विल टारगेट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, कि मुझे इसी को फंसाना है, बिकॉज मे बी बिकॉज फाइनेंशियल रीजंस कैन बी देयर, या दैट पर्सन इज हैविंग सो मच ऑफ द sensitive information, important information. So that person will be targeted, that individual will be targeted, or organization will be targeted by spear phishing. So ये है सारे phishing के types. phishing का मतलब है किसी को धोखे से फंसाना और उसकी जो भी information है उसको लेके उसका misuse करना. So that is phishing. You remember this concept. phishing मतलब धोखाधड़ी करना किसी के साथ. तो ये सब चीजें ऑनलाइन हो रही है, तो that is also the type of cyber attack. नेक्स्ट वन इज पासवर्ड अटैक्स। दीज अटैक्स आर ऑल्सो वेरी कॉमन, क्योंकि हमारी जो भी सिस्टम्स है आजकल, देखो मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, या कोई और सिस्टम है, तो वो सभी चीजों को हम पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो व्हाट अटैकर्स आर गोइंग टू डू, दे आर गोइंग टू क्रैक द पासवर्ड्स और दे आर गोइंग टू स्टील द पासवर्ड्स, कि हमारा पासवर्ड एक तो वो गैस करने की कोशिश करेंगे या चोरी करने की कोशिश करेंगे। तो दीज टाइप्स ऑफ अटैक्स आर कॉल्ड एज पासवर्ड अटैक्स। इसके भी कुछ टाइप्स है, जैसे आप लोग देख सकते हो ब्रूट फोर्स अटैक, ये है ट्राइंग एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। सो उनको मेरा नाम पता है अश्विनी, तो दे विल ट्राई ऑल द पॉसिबल combinations by using my name, my date of birth, या फिर my phone number. They will try all the combinations of characters. This type of attack is called as brute force attack. Second attack is dictionary based attack. यहाँ पे क्या होता है, जो कॉमन वर्ड्स या फ्रेजेस जो पासवर्ड्स में यूज होते हैं वो गैस करने का ट्राई करेंगे, या फिर उनको उनके पास पहले से कोई लिस्ट है पासवर्ड्स की, उसमें से वो ट्राई करेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो रेडीमेड यूजर नेम एंड पासवर्ड दे रहा है अपने यूजर्स, तो वो सब पासवर्ड डिक्शनरी बेस्ड पासवर्ड्स लेके उनको ट्राई आउट करेंगे. सो दिस इज कॉल्ड एज डिक्शनरी अटैक. That is a type of password attack. Next one is credential stuffing, using stolen username and password कॉम्बर्स टू गेन एक्सेस. वो सारे यूजर नेम एंड पासवर्ड का लिस्ट कहीं से तो ले लेंगे, ऑब्वियसली चोरी ही करेंगे कहीं से, तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पासवर्ड्स यूजर नेम वो ट्राई करते रहेंगे ताकि उनको एक्सेस मिल जाए सिस्टम पे. फिशिंग फॉर पासवर्ड्स, तो लोगों को लिंक भेजना. फिशिंग का मतलब वही है कि लिंक भेजेंगे और बोलेंगे आप लोगों का जो यूजर नेम है पासवर्ड है वो दे दो, हमें कुछ काम है बैंक में या कॉलेज में या स्कूल में कहीं पे. So they will give you link, and on that link they try to tell people that give your username and passwords. So these are the types of password attacks. क्यों important है, क्योंकि अगर हमारा पासवर्ड सिस्टम का किसी को पता चल गया तो
वो लोग हमारी सारी इंफॉर्मेशन का, जो भी हमारे पास डेटा है, पर्सनल है, बैंकिंग का है, कोई भी डेटा है, वो सबका ये लोग मिसयूज कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। कि अभी नहीं आता, यू हैव टू हैव कैरेक्टर्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, एवरीथिंग इन योर पासवर्ड। यू हैव टू मेक योर पासवर्ड very strong. You do not write the password anywhere. Do not tell your passwords to anyone. Change the passwords time to time. ये सब करते रहना चाहिए because people are there, the attackers are there who are going to attack on your passwords. और उनको पासवर्ड पता चल गया तो वो पूरा आपका जो है अकाउंट है या जो भी आपका डेटा है उसके ऊपर वो अटैक करके उसका मिसयूज कर सकते हैं. So these are the types of password attacks. Now the next type of attack is the network attack. कि अभी सिस्टम्स पे अटैक हो रहे हैं, इंडिविजुअल्स पे अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है, बट हम तो स्टैंड अलोन सिस्टम्स नहीं यूज कर रहे हैं. जो भी है हमारा सारा नेटवर्क में चल रहा है आजकल. नॉर्मल हमारा फोन है वो भी किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है, लैपटॉप कनेक्टेड है, हम खुद किसी ना किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है. सो द नेटवर्क अटैक्स दे टारगेट द वीकनेस इन नेटवर्क कम्युनिकेशन. कि नेटवर्क पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसका जो वीकनेस है उसको वो आइडेंटिफाई करेंगे और उस पे अटैक करने की कोशिश करेंगे. दैट टाइप ऑफ अटैक इज कॉल्ड एज नेटवर्क अटैक. तो अगेन नेटवर्क के जो अटैक्स है उसके भी टाइप्स हैं. तो पहला वाला है मैन इन द मिडल अटैक. तो मैं किसी को डेटा सेंड कर रही हूँ मेरी सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, सिस्टम टू सिस्टम डेटा ट्रांसफर हो रहा है या कम्युनिकेशन हो रहा है. तो what the attacker will do, it will try to hijack that particular communication in between. As you can see in this picture, there are two systems communicating with one another, but one person is sitting in between. एक बंदा बैठा हुआ है, ये जो दोनों बोल रहे हैं आपस में वो सुन रहा है, उनका कम्युनिकेशन वो इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहा है. So this type of attack is called as man in the middle attack. सेकेंड टाइप इज कॉल्ड स्निफिंग और ईव्सड्रॉपिंग. तो जो नेटवर्क के ऊपर ट्रैफिक जा रहा है, पैकेट्स ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क, they will try to capture that whole network traffic and try to read what is written in those packets, or what is written in those messages. So that whole communication can be captured, network traffic can be captured, and that attack is called as sniffing attack or eavesdropping attack. थर्ड इज आईपी स्पूफिंग. आईपी स्पूफिंग में क्या हो रहा है, फेक आईपी एड्रेसेस ये लोग यूज कर रहे हैं. तो आईपी एड्रेस यूज करेंगे, किसी को मेल करेंगे या कोई जो भी कम्युनिकेशन करेंगे तो उस बंदे को लगेगा कि ये इस आईपी एड्रेस से कम्युनिकेशन हो रहा है, बट एक्चुअली द पर्सन इज यूजिंग द फेक आईपी एड्रेस टू इम्पर्सोनेट दैट. उनको बताना कि मैं ये आईपी एड्रेस से काम कर रहा हूँ. तो सामने वाले को लगेगा ये आईपी एड्रेस जो है वही मुझे मैसेजेस मेल कर रहा है, बट एक्चुअली उस आईपी एड्रेस को यूज करके कोई और बंदा अ, उसका मिसयूज करके किसी को धोखाधड़ी कर रहा है, मैसेजेस कर रहा है, मेल्स कर रहा है. तो ये टाइप ऑफ अटैक को बोलते हैं आईपी स्पूफिंग, फेक आईपी एड्रेसेस का यूज करना. एंड नेक्स्ट वन इज सेशन हाईजैकिंग. अभी फर्स्ट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सेशन क्या है. सी, जब भी हम कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक सेशन आईडी क्रिएट होता है. जैसे कि सपोज हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग का कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो दैट सेशन आईडी विल बी क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम. वो सेशन आईडी अगर किसी ने हाईजैक कर लिया तो हमारा पूरा सेशन के ऊपर वो लोग कंट्रोल कर लेंगे. सो मे बी हम जो भी फिर उस सेशन में कर रहे हैं वो सब उनको पता चल जाएगा कि व्हाट आर योर पासवर्ड्स, व्हाट आर योर क्रेडिट कार्ड नंबर्स, डेबिट कार्ड नंबर्स, OTPs that we are entering, everything will be read by those attackers. कि हमारा पूरा जो ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन था उसका सेशन ही उन लोगों ने हाईजैक कर लिया, या जो कम्युनिकेशन हो रहा था उस पर्टिकुलर टाइम पे वो पूरा का पूरा सेशन ये लोग देख रहे हैं और इन लोगों को पता चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं हमारे सिस्टम्स के ऊपर. सो ये चार जो अटैक्स है वो है नेटवर्क अटैक्स. और भी है डिनायल ऑफ सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, दैट वी विल सी नाउ. सो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ये सारे दो जो अटैक्स है ये अटैक्स हो रहे हैं सिस्टम्स के ऊपर जो कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. So what happens in this attack? These attacks overwhelm or floods the systems with n number of messages, so it stops working and cannot perform the normal operations. कि एक सिस्टम को टारगेट करो और उसको इतने सारे मैसेजेस भेजो
कि वो सिस्टम अपना काम करना बंद कर दे और जो अपना नॉर्मल ऑपरेशन है उसका बंद हो जाए। तो ये टाइप ऑफ अटैक मतलब डिनाई हो रहा है, मैं कोई सर्विस मांग रही हूँ सिस्टम से, सिस्टम नहीं दे पा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज डिनायल ऑफ सर्विस। जो सिस्टम है वो अपना सर्विस नहीं दे पा रही है, that type of attack is called as denial of service attack. So let us see how it works. तो ये जो पिक्चर है इसमें आप देख सकते हैं कि denial of service attack, it is a cyber attack on a system where one attacker overwhelms and makes a system unavailable by flooding it with traffic. You see the attacker is there and the target machine is there. So attacker is continuously sending the traffic towards the target machine. उसको इतने सारे पैकेट्स मैसेजेस भेजो टारगेट सिस्टम को, वो सिस्टम अपने आप बेचारा काम करना बंद हो जाएगा, कोई भी अपना सर्विस नहीं दे पाएगा। तो दिस टाइप ऑफ अटैक इज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वहां पे एक अटैकर है और एक सिस्टम को वो टारगेट कर रहा है। फ्लडेड ट्रैफिक मतलब इतना सारा ट्रैफिक उसके ऊपर भेज रहा है कि वो सिस्टम ओवरवेल्म हो जाएगा एक्सेसिव रिक्वेस्ट मैसेजेस से, और इवेंचुअली द सिस्टम विल बिकम अनअवेलेबल। बिकॉज ऑफ दिस द सिस्टम विल बिकम अनअवेलेबल और उसका जो है परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा और डाउन टाइम आ जाएगा। डाउन टाइम मीन्स फॉर अ पर्टिकुलर टाइम द सिस्टम विल स्टॉप वर्किंग, उसको बोलते हैं डाउन टाइम कि सिस्टम अपना सर्विस नहीं दे पा रहा है। सो आइदर यू विल गेट the result like slow performance or downtime because the system is unavailable. So this is called as denial of service attack. तो ये एक अटैकर एक टारगेट है उसका, उसको इतने मैसेजेस से फ्लड कर रहा है कि बेचारा काम करना बंद कर देगा। देन द नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। पहले वाले में क्या था, एक अटैकर था, उसने एक सर्विस सिस्टम को टारगेट कर रखा था, उसके ऊपर वो कंटिन्यूअसली मैसेज नंबर ऑफ मैसेजेस भेज रहा था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी अटैकर इज हैविंग सम इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स, दे आर कॉल्ड एज बॉटनेट्स। तो ये क्या करेगा, पहले तो बॉटनेट्स क्रिएट करेगा जो फिर अटैकर्स बन जाएंगे, और ये सब मिलके एक टारगेट सिस्टम को इतना फ्लड करेंगे मैसेजेस से कि बेचारा फिर से काम करना बंद कर देगा। पहले वाले में सिर्फ एक अटैकर था, यहाँ पे नंबर ऑफ अटैकर्स आर देयर एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड। A cyber attacks where multiple attackers use a network of infected computers to overwhelm and make a system unavailable by flooding it with traffic. उसको इतने सारे ट्रैफिक भेज दो कि eventually it will go down, it will not work properly, it will stop working. So here we can see the meaning of downtime. Downtime means the time during which a system or website or service is not working or not available to users. See, planned downtime हो सकता है किसी वेबसाइट का या किसी सर्वर का, कि वो कुछ मेंटेनेंस कर रहे हैं या अपग्रेडेशन कर रहे हैं, so they can have their planned downtime. That is another part. But because of distributed denial of service or DOS attack, the system will stop working and that is unplanned downtime. कि सिस्टम काम करना बंद किया है बिकॉज ऑफ दीज टाइप्स ऑफ अटैक्स। तो नाउ उसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो मल्टीपल अटैकर्स है, उसमें नॉट नेसेसरी कि कोई सिस्टम से है, बॉटनेट्स भी हो सकते हैं, ट्रैफिक फ्लडिंग जो है जो प्रीवियस में भी था, सिस्टम विल बिकम अनअवेलेबल, डाउन टाइम हो जाएगा अनप्लान्ड, पता नहीं फिर सिस्टम कब रिकवर होगी, एंड सिस्टम विल बिकम अनअवेलेबल फॉर द सर्विसेज। So this type of attack is called as distributed denial of service, कि सिस्टम अपना सर्विस नहीं दे पा रहे क्योंकि किसी ने उस पे इतने सारे मैसेजेस भेज के उसको बेचारे को फ्लड कर दिया है, वो काम करना बंद कर दिया। So distributed denial of service and previous was the denial of service attack. Now let us try to understand there is something called as zombie machines. तो उसमें हमने देखा distributed denial of service attack में एक जो है अटैकर, उसने सारे सिस्टम्स को इन्फेक्ट कर दिया है, और ये अभी सिस्टम्स जो है they will be controlled by the attacker. So when an attacker controls many infected computers, and ये जो infected है सारे machines, इनको बोलेंगे हम zombies, और ये zombies का यूज करके किसी टारगेट को फिर अटैक करेगा। So zombie machines, you just remember this concept कि जो भी infected computers है जिसको ये अटैकर ने इन्फेक्ट करके रखा है और कहीं पे बैठ के वो ये सारे सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहा है, कोई तो बुरा काम करने के लिए, इट्स नॉट लाइक कि अच्छा काम करेंगे, दे आर गोइंग टू अटैक सम अदर सिस्टम। सो दीज मशीन्स आर कॉल्ड एज ज़ॉम्बी मशीन्स और zombies, and this is also a dangerous type of attack.
तो ये सारे पहले वाले जो हमने देखे वो कोई तो बाहर से अटैकर्स थे जो सिस्टम को अटैक कर रहे थे, कोई तो बाहर बैठा है अटैकर हैकर और वो ट्राई टू अटैक अवर सिस्टम विच इज वेरी मच प्रोटेक्टेड मे बी। बट इनसाइडर थ्रेट्स कौन है जो अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में है, अपने ही आसपास है, दोज आर कॉल्ड एज इनसाइडर थ्रेट्स। So threats can come from within an organization where employees, contractors or other insiders misuse their access to harm the organization। कि उनका रीजन कुछ भी हो सकता है, उस रीजन की वजह से वो अपने ही सिस्टम्स को, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई थ्रेट स्प्रेड कर रहे हैं। कौन कौन से है ऐसे इनसाइडर थ्रेट्स? नंबर वन इज मैलिशियस इनसाइडर। तो ऐसा कोई है कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो इंटेंशनली स्टील्स डेटा और सैबोटेज सिस्टम्स की वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। मे बी उसका रीजन कोई भी पर्सनल रीजन हो सकता है, कोई भी उसका जो भी है फाइनेंशियल हो सकता है, उसका कॉम्प्रोमाइज किसी भी चीज की वजह से हो सकता है। तो वो बंदा इंटेंशनली कंपनी की इंफॉर्मेशन चोरी करने की कोशिश करेगा, उसको बोलते हैं मैलिशियस इंसाइडर। सेकेंड वन इज नेग्लिजेंट इंसाइडर, कि वो इंटेंशनली कुछ नहीं कर रहा है बट बाय मिस्टेक एक्सीडेंटली उसने जो डेटा है वो एक्सपोज कर दिया, या सिस्टम की वीकनेस जो है वो किसी वजह से उसने एक्सपोज कर दी। तो दैट इज कॉल्ड एज निग्लिजेंट इंसाइडर। थर्ड पार्टी इंसाइडर, कोई भी ऐसा बंदा जो कंपनी में काम तो नहीं कर रहा है बट आता जाता रहता है, उसका कोई ना कोई है रिलेशन विद द ऑर्गेनाइजेशन, कैन बी वेंडर, कॉन्ट्रैक्टर, एनीबडी हु इज कॉम्प्रोमाइज्ड and who is trying to access the organization or trying to misuse the access given to him, that is the third party insider। तो क्या हो सकता है इन इनसाइडर थ्रेट्स की वजह से? क्या हो सकता है? डेटा थेफ्ट, चोरी करेंगे वो जो हमारा डेटा है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो भी है, स्टीलिंग सेंसिटिव डेटा और ट्रेड सीक्रेट्स, क्योंकि उनको तो सब पता है कि कंपनी के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन है, क्या क्या सेंसिटिव डेटा है। अगर ये लोगों का इंटेंशन अगर रॉन्ग है तो हमारा डेटा थेफ्ट हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है कंपनी में, हमारे सिस्टम डैमेज हो सकते हैं जिसको बोलते हैं सैबोटेज। तो हमारा ऑपरेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। एस्पियोनेज हो सकता है कि हमारा जो डेटा है कॉन्फिडेंशियल, सेंसिटिव, उसको लेके किसी और को ये लोग बेच भी सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज एस्पियोनेज, कि डेटा लीक करो, उसके बदले में पैसे लो या किसी को सेल करो डेटा। तो ऑल दीज आर कॉल्ड एज इनसाइडर थ्रेट्स। देखो कभी कभी हम लोग बाहर वालों को मतलब अटैक करने से रोक भी सकते हैं, बट व्हाट अबाउट द पीपल हु आर देयर इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड doing the damage to the system? So these attackers are also dangerous, who are the insider threats। नेक्स्ट वन इज फिजिकल अटैक्स। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो भी अटैक्स थे वो डेटा के ऊपर हो रहे थे, इंफॉर्मेशन के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर हो रहे थे। नाउ फिजिकल अटैक्स, दैट इज इन्वॉल्व द फिजिकल एक्शंस, की फिजिकली हमारा जो डिवाइस है उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की जाएगी। दोज अटैक्स आर कॉल्ड एज फिजिकल अटैक्स। सो पहला तो है मेरा मोबाइल किसी ने चोरी कर लिया, मेरा लैपटॉप किसी ने चोरी कर लिया, या कंपनी में से कोई सिस्टम या हार्ड डिस्क चोरी कर लिया। सो दैट इज थेफ्ट ऑफ डिवाइसेस, कि वो डिवाइस ही लेके जा रहे हैं, इक्विपमेंट ही लेके जा रहे हैं। सेकेंड वन इज अनऑथराइज्ड एक्सेस, कि कोई रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, उसके अंदर कोई की कार्ड है या कोई तो लॉक पिक से उसको लेके जाएगा और ट्राई करेगा अंदर जाने का। दैट इज कॉल्ड एज अनऑथराइज्ड एक्सेस। ईव्सड्रॉपिंग मतलब फिजिकली स्पाइंग ऑन सेंसिटिव, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो वो सारी चीजें चुपके से सुनना या उसके ऊपर नजर रखना, दैट इज कॉल्ड एज ईव्सड्रॉपिंग। टैम्परिंग, प्लांटिंग रफ डिवाइसेस लाइक की लॉगर्स ऐसे इंस्टॉल करना या स्पाई कैमराज इंस्टॉल करना, जिससे ये लोग देख सकते हैं कि कंपनी के अंदर क्या क्या चल रहा है या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चल रहा है, कौन क्या काम कर रहा है, कौन सी कीज हम टाइप कर रहे हैं, स्क्रीन पे क्या चल रहा है। ये सारी चीजों को वो देख के फिर उसके साथ कुछ टैम्परिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? अभी पहले तो एक्सेस कंट्रोल हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए, कि कंपनी के अंदर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसके ऊपर पूरा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। की कार्ड्स यूज कर सकते हैं, बायोमेट्रिक्स, फिंगर प्रिंट्स और फेस डिटेक्शन, रेटिना स्कैनर्स जैसे एक्सेस कंट्रोल हम यूज कर सकते हैं। एंट्री कंट्रोल्स यूज करते हैं। वीडियो सर्वाइलेंस हर जगह पे, अभी आजकल हम देख रहे हैं कि हर जगह पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सारी चीजें वीडियो सर्वेलेंस के अंदर होनी चाहिए। फिजिकली वी हैव टू लॉक द डिवाइसेस, कि
जो भी सेंसिटिव इक्विपमेंट्स है उसको अच्छे से आपको लॉक करके सिक्योर करना है। एंड टाइम टू टाइम वी हैव टू गिव द सिक्योरिटी ट्रेनिंग कि हमारे जो भी एम्प्लॉयज है, जो भी स्टेक होल्डर्स है, उनको टाइम टू टाइम अवेयर करना है अबाउट द सिक्योरिटी पॉलिसीज की। उनको बताना है कि आपने अगर ये किया तो आपको ये टाइप की पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जो 3Ds में डेटरेंस है वो है दिस सिक्योरिटी ट्रेनिंग की। उनको टाइम टू टाइम बताना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। अगर उनको नहीं समझ रहा है तो टाइम टू टाइम उनको वार्निंग्स भी देनी चाहिए कि आप लोग गलत कर रहे हो, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिजिकल अटैक स्टॉप हो सकता है अगर आप फिजिकली लोगों को रोक के कोई गलत काम करने से। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फिजिकल अटैक्स। थेफ्ट ऑफ डिवाइसेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस, ईव्सड्रॉपिंग मतलब सुनना चोरी चुपके से या देखना चोरी चुपके से, या टैम्परिंग ऑफ द systems. Then, so this is the means these are all the types of cyber attacks. We can see some attacks are on systems logically, and some attacks are on systems which can happen physically. So all they come under the types of attacks. So this conclusion we can say for today's lecture, cyber attacks occur in many forms. कि हम भी देखा हम लोगों ने कि किसी भी फॉर्म में साइबर अटैक्स आ सकते हैं। एक तो ह्यूमन फॉर्म्स में आ सकते हैं, सॉफ्टवेयर तो है ही जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर हमने देखे, या अटैक्स हो सकते हैं नेटवर्क बेस्ड, डिनायल ऑफ सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, स्पूफिंग। ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड अटैक्स। कि किसी भी फॉर्म में अगर अटैकर को करना ही अटैक तो वो किसी भी फॉर्म में अटैक कर सकता है। इसके लिए इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइप्स ऑफ अटैक्स कि हमें मालूम होना चाहिए। वी हैव टू नो व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ अटैक्स, and if we know this is the foundation of cyber security. The first and foremost thing is to understand the types of attacks, and then only we can have the proper cyber security. And strong cyber security comes from layer defense ki you have to have various types of layers, first layer, second layer, to crack any type of confidential or sensitive system. And continuous monitoring should be there. Time to time हमें चेक करते रहना चाहिए कि क्या हो रहा है, हमारा डेटा कहीं पे गलत जगह पे जा तो नहीं रहा है, कोई उसका मिस यूज तो नहीं कर रहा है, कोई वायरस नहीं आ रहा है ना, कोई वर्म नहीं आ रहा है ना, या फिर ट्रोजन नहीं आ रहा है ना। ट्रोजन के ऊपर वी विल हैव अ सेपरेट वीडियो। ट्रोजन हॉर्स मैं तुम लोग को एक सिंपली बता देती हूँ कि कोई ऐसा सिस्टम है, कोई ऐसा मतलब फाइल हमारे सिस्टम में आ रहा है जो ऊपर से लग रहा है ट्रस्ट वर्दी, कि ऊपर से अच्छा लग रहा है, बट उसके बिहाइंड दैट it can have some malicious code, some malicious files can be there, and once you open it the system will get damaged, system will get hacked. So that is the concept of Trojan horse. We will have a separate video on Trojan horse, how they work, how they enter the system. We will have a video on that. एडवेयर एंड स्पाईवेयर, आई फॉरगॉट टू टेल यू कि कंटिन्यूअसली कोई तो एड्स चलते रहेंगे सिस्टम में जिनकी जरूरत नहीं है। मे बी हमारे परमिशंस के बिना, हमारे नॉलेज के बिना एडवेयर्स एडवर्टाइज दिखाते रहेंगे हमें, बार बार पॉपअप होते रहेंगे एडवर्टाइज बार बार। सो दैट इज द टाइप ऑफ मैलिशियस कोड विच इज एडवेयर। सो इन द प्रीवियस one of the screens you can see the example of Trojan horse and adware or malware. I will have a separate video definitely on Trojan horses. So I hope you understood whatever topics we discussed today. uh, Thank you so much for watching. If you have any doubt related to this particular topic of attacks or importance of cyber security, please comment below the video. I will be definitely answering all your queries, all your doubts. Please hit a like if you like this particular video, and don't forget to share this video for the awareness about cyber attacks and the people who may need to know about cyber attacks. And don't forget to subscribe the channel. Thank you so much. Thank you. Have a nice time. God bless you all.